Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गोपीनाथ और प्रभु। डायरेक्ट चलते हैं श्लोक की ओर, बिकॉज ऑलरेडी 9 मिनट पास हुआ है। सो विल स्टार्ट दिस क्विकली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सह गणललिता श्रीशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवृन्दोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणां। परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् आनन्दलीला मय विग्रहाय हिमाङ्गदिव्याच विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। Third canto, 25th chapter, 18th verse. ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसाम्। ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च तौजसा। Translation interpreted by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. In that position of self-realization by practice of knowledge and renunciation and devotional service, one sees everything in the right perspective. He becomes indifferent to material existence, and the material influence acts less powerfully upon him. Purport: as the contamination of the germs of a particular disease can influence a weaker person, similarly the influence of material nature evolutionary energy can act on weaker or conditioned souls, but not on the liberated soul. Self-realization is the position of the liberated state. One understands his constitutional position by knowledge and vairagya, renunciation.
Without knowledge, one cannot have realization. The realization that one is the infinite small part and parcel of the Supreme Spirit makes him unattached to the material conditioned life. That is the beginning of devotional service. Unless one is liberated from material contamination, one cannot engage himself in the devotional service of the Lord. In this verse, it is therefore stated, Jnana Vairagya Yuktena. When one is in full knowledge of one's constitutional position and is in the renounced order of life, detached from material attraction, then by pure devotional service, Bhakti Yuktena, he can engage himself as a loving servant of the Lord. Paripashyati means that he can see everything in its right perspective. Then the influence of material nature becomes almost nil. This is also confirmed in the Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasannatma. When one is freed, when one is self-realized, he becomes happy and free from the influence of material nature. Another time he is freed from lamentation and hankering. The Lord states that position as Mad Bhaktim Labhate Param, the real state of beginning devotional service. Similarly, it is confirmed in the Narad Pancharatra that when the senses are purified, they can be engaged in the devotional service of the Lord. One who is attached to the material contamination cannot be a devotee. So Kapil Muni is answering the devotees' questions. और यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देने और यहाँ पर कितना सुंदर श्लोक है ये. ज्ञान वैराग्य युक्तेन, ज्ञान और वैराग्य, नॉलेज, वैराग्य और डिटैचमेंट, रिनाउंसिएशन, युक्तेन, इक्विप्ड विद भक्ति, तो नॉट इंडिपेंडेंट. ज्ञान और वैराग्य सेपरेट नहीं. बिकॉज as soon as हम लोग उसी प्रकार से अगर हम लोग ज्ञान के मार्ग में हम लोग हैं और अगर भक्ति नहीं है तो what happens is there is bewilderment, मोग ज्ञान, there is this knowledge that is bewildering because of speculative nature. And vairagya, renunciation, agar just you have mere renunciation but there is no control of the senses, इंद्रियों का अगर दमन नहीं है और अगर भगवान के प्रति ज्ञान नहीं है तो वो ऐसा वैराग्य मिथ्या आचार कहलाता है. भगवत गीता में भी भगवान 3 अध्याय में कहते हैं कि मिथ्या आचार, you become one who is not able to control his senses but just artificially showing renunciation. बाहरी रूप से वो अपने आप को वैरागी दिखाता है, तो मिथ्याचार, अंदर मन में बहुत लड्डू फूटते हैं. He is experiencing within the mind a lot of sense enjoyment. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो कैसा होना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य युक्तेन, भक्ति युक्तेन च आत्मनः. थ्रू भक्ति, भक्ति के माध्यम से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है. केवल भक्ति कार्य करने से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है. क्योंकि ज्ञान और वैराग्य कौन है? भक्ति देवी का, भक्ति देवी की वे 2 पुत्र हैं. They are the sons of भक्ति देवी, ज्ञान और वैराग्य. इसका अर्थ है कि अगर भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य होना ही चाहिए. इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. ये कोई रिलीजन वगैरह नहीं है, दिस इज साइंस. इसमें हम लोग अपने आप को वी कैन रियलाइज, हम लोग इस बात की हमको पुष्टि होती है, अनुभव होता है. वी आर एबल टू रियलाइज, आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि हम लोग सही में जिस वैराग्य उत्पन्न करने के लिए या जिस ज्ञान के प्रति हम लोग, भगवान के प्रति हम लोग को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए केवल भक्ति के माध्यम से हम लोग जब करते हैं तब क्या होता है, तो ये अपने आप आ जाता है. इट इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट जैसा आ जाता है. उसी तरह से पद्म पुराण में भी कहा गया है कि भक्ति देवी कलयुग जैसी आते आते कमजोर हो गई और ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटे भी कमजोर हो गए. तो नारद मुनि के पास जाने के बाद नारद मुनि ने कहा भागवतम सुनो,
जैसे आप लोग हर दिन करते हैं नित्यम भागवत सेवा। इस श्रीमद् भागवतम में पूर्ण भक्ति का ही मार्ग बताया गया है। भगवान के ज्ञान तत्व तो प्राप्त है ही, साथ 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 रस तत्व का भी हमें जो है वो वी गेट टू नो, हम लोग को रस तत्व का अर्थ भी समझ में आता है, क्योंकि ज्ञान तत्व से बड़ा है रस तत्व। ज्ञान तत्व में भगवान के बारे में भगवान स्वयं अपने आप को बता रहे हैं कि वो स्रोत है सबके, अहम सर्वस्य प्रभु मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय अहम आदिर ही देवाना। इस प्रकार से भगवत गीता में कई श्लोक है जिसमें भगवान अपने आप को बता रहे हैं, विभूति ज्ञान दे रहे हैं कि अब मैं कौन हूं, हु एम आई एम द लॉर्ड, ईश्वर, ईश्वर है परम कृष्ण, वही कृष्ण है। तो ये ज्ञान के मार्ग में आ गया, ज्ञान तत्व हुआ। अब रस तत्व क्या है? रस तत्व वह है कि भगवान बड़े नहीं है, भक्त बड़ा है। हरे कृष्ण। तो कई बार ये सवाल आता है ना कि कौन बड़ा, कौन बड़ा, हु इज बिग, हु इज बिग। ये बहुत सारे सनातनी उसमें खास करके ये होते हैं कि अपने अपने छोटे दिमाग से हम लोग कोशिश करते हैं कि बड़ा कौन है, हु इज बिग, हु इज बिग। सारे देवताओं में कौन बड़े हैं? तो भगवत गीता में तो मालूम होता है कि भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण, ही इज द टॉप मोस्ट सुप्रीम पर्सनालिटी। उन्हीं के द्वारा सब कुछ, अहम आदिर ही देवाना, अहम बीज पद पिता, पिता हम यस्य जगतो माता दाता पिता, वही है सब कुछ। तो ये ज्ञान तत्व में, मगर रस तत्व में कौन बड़ा है? श्रील प्रभुपाद जी एक बार पूछे, हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी सर, बताओ कौन है ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी? तो सब लोग ने कहा कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी। प्रभुपाद से रॉन्ग आंसर। फिर किसी ने कहा चैतन्य महाप्रभु, तो बोले हाफ राइट। तो दूसरा आधा क्या राइट है? श्रीमती राधा रानी। So the right answer, the greatest personality, भक्त बड़ा, डिवोटी। महादेव भी बताते हैं, जब पार्वती माता पूछती है कि हु इज द वर्शिपेबल डीटी, तो बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। दिस इज ज्ञान तत्व, विष्णु आराधनम परम। उसके बाद में तदिया, उसके बाद में है ना परतरम देवी तदिया नाम समाचल, तदिया नाम, हु इज तदिया नाम? डिवोटी, भक्त, भक्त बड़ा। तो श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। भगवान कृष्ण तो ये रस तत्व में आता है। तो माधुर्य भाव में श्रीमती राधा रानी, वात्सल्य भाव में कई बार हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण, भगवान अपने माता और पिता के चरण को अपने सर पर रखते हैं। तो बाहरी रूप से कौन बड़ा? रस तत्व में कौन बड़ा? यस, ये अपना नंद बाबा। बट ज्ञान तत्व में कृष्ण। सो एनीवे, कृष्ण रसराज है। तो ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मन, तो भक्ति के माध्यम से ही हम लोग को ज्ञान और वैराग्य, जैसे बता रहे थे भक्ति देवी कमजोर हुई थी, भागवतम सुना तो वापस पूर्ण भक्ति एकदम तुष्ट पुष्ट हुई है। उसी प्रकार से हम लोग भी, और उनके दो बेटे भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, वे भी पुष्ट हुए। तो भक्ति करनी है, तब जाके ये आराम से हम लोग को समझ में आता है कि किस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य जो है अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितना सुंदर यहाँ पर बात करते हैं। One understands his constitutional position by knowledge and vairagya, कि हम लोग अपने आप को, one understands his constitutional position by knowledge and vairagya। जैसे हम लोग को ज्ञान तो प्राप्त होता है कि जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण, हम लोग दास है भगवान के, ये हम लोग का स्वरूप है। बट दिस इज ऑन नॉलेज प्लेटफॉर्म। अंडरस्टैंडिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये रियलाइजेशन है। ये कैसे हो पाएगा? प्रभुपाद जी बताते हैं, विदाउट नॉलेज वन कैन नॉट हैव रियलाइजेशन। यस, तो ज्ञान चाहिए।
अब ज्ञान के साथ साथ में ये कैसे हम लोग साथ साथ कर सकते हैं? हाउ कैन वी रियलाइज आवरसेल्व्स? कैसे हम लोग इसका ज्ञान, इस ज्ञान को वी रियलाइज व्हेन वी आर डूइंग भक्ति। भक्ति के माध्यम से हम लोग जानते हैं। और उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण यह है कि हम लोग अणु हैं, वी आर इनसिग्निफिकेंट। खाली यही नहीं कि हम लोग भगवान के दास हैं, हम लोग इनसिग्निफिकेंट, ये एक भाव उत्पन्न होता है। एब्सोल्युटली नो प्राइड, कोई अहंकार नहीं, मिथ्या अहंकार बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि he has realized through that process of भक्ति। ज्ञान तो प्राप्त है, यस, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के हम दास हैं, मगर इसका रियलाइजेशन कैसे होगा? जब भक्ति करेंगे तब मालूम होता है, और बहुत अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तब यू विल कम टू नो दैट यू आर इनसिग्निफिकेंट, ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। कृष्ण का कृपा के प्रति हम लोग का हमेशा वी आर ऑलवेज एस्पायरिंग फॉर कृष्णस मर्सी। हम लोग हमेशा भगवान कृष्ण की कृपा चाहते हैं। प्रभुपाद जी जब पहली बार बॉस्टन हार्बर पहुंचे, पिछला हफ्ता सैटरडे को प्रभुपाद जी का अराइवल था, तो बॉस्टन हार्बर में पहुंचे, उसके 2 दिन बाद न्यूयॉर्क पहुंचे। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मार्की ने भागवत धर्म का सुंदर कविता लिखा। मार्की ने भागवत धर्म, भागवत धर्म अमेरिका में, मार्की ने मीन्स अमेरिका, मार्की ने अमेरिका में कैसे हम भागवत धर्म प्रचार करें, उसमें प्रभुपाद जी अपना भाव प्रकट करते हैं दैट आई एम इनसिग्निफिकेंट, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मुझे टाइटल दिया गया है भक्ति वेदांत, अब मैं क्या कर सकता हूं? मुझे नहीं कुछ, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ओनली बाय योर मर्सी। आपके ही कृपा से ये सब कुछ हो सकता है। मेरा एक लक्ष्य है, मेरा मिशन है कि मेरे गुरु महाराज का जो वाणी है इसको पाश्चात्य देश में प्रचार करूं मैं। चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये कृष्ण का उपदेश है। आई शुड गिव इट टू एवरीवन, बट मेरे में कोई समर्थ नहीं है, मैं असमर्थ हूं। हे कृष्ण, आप कृपा करिए, यू गिव योर मर्सी, आई एम इनसिग्निफिकेंट। आप मुझे पपेट बनाए, मेक मी अ पपेट इन योर हैंड्स। आप मुझे डांस कराइए, यू मेक मी डांस। दिस इज कृष्ण, दिस इज डिवोटीज मूड, ये भक्त का मूड होता है। He realized that he is insignificant. This is the realization you get by processing bhakti. Yes, ज्ञान तो है, हम लोग भगवान के दास है, बट इसका अनुभव कैसे होगा? जब बहुत अच्छी तरह से भक्ति करोगे, then automatically one will realize that he is insignificant. And all this process of speculative knowledge, we'll give it up. ब्रह्मा का जो प्रार्थना है, प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपासना नमन्त एव यन सम्मुखरिताम भवदीय वार्ता तनुमान मनोभीर। दिस इज ब्यूटीफुल वर्ड्स। ज्ञान प्रयासम उदपास, उदपास का अर्थ है उसको छोड़ना, ज्ञान प्रयास, not by the process of speculative knowledge. Jnanam prayasam udapas namanta eva, and then namanta, namanta is namaskar, भक्ति करते हैं। सन्मुखरिताम, और जो भक्त गण हैं उनके मुखारविंद से भगवान की भक्ति सुनते हैं, श्रवण करते हैं। सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भवदीय वार्ताम, भगवान के जो कथा है वो सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और उसके बाद में तनुमान मन, अपने जीवन, तन, मन और वाचा से, अपने शरीर से, अपने मन से और अपने वचन से भगवान की सेवा करते हैं। तनुमान मनोभीर, सच अ पर्सन, वो क्या कर सकता है? वो भगवान को वो जीत लेता है। कृष्ण इज कॉल्ड अजीता, उसको कोई जीत नहीं सकता, मगर भक्त जो है उसको जीत लेता है। हाउ? बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. वन अंडरस्टैंड्स हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. दूसरा एक बहुत शब्द इस श्लोक में महत्वपूर्ण है. तो पहला दो लाइन में इसका अर्थ ये है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मन. केवल भक्ति के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है, और केवल ही भक्ति के प्रयास से ये होना चाहिए. अगर ऐसी इंडिपेंडेंट में होगा तो ज्ञान के प्रयास में हम लोग विफल हो जाएंगे. हम लोग में वी विल गेट प्राइड. हम लोग देखते हैं कृष्ण की लीला में, जब ओ कृष्ण, जस्ट अ सेकंड, कृष्ण की लीला में हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, फिर कृष्ण और बलराम जी को भूख लगा, फिर भक्तों को, अपने सखाओं को भेजा, जहां वहां पर यज्ञ चालू, वहां से कुछ ले लो. गए तो फिर ब्राह्मण ने, है जाओ यहाँ से. तो ब्राह्मण पत्नी के पास कृष्ण और बलराम बोले वहां जाओ, तो उन लोगों ने सब कुछ दे दिया. तो ऐसे ब्राह्मण बहुत, उनके पास ज्ञान है, मगर क्या फायदा. दे डोंट नो कृष्णा इज देयर. जो यज्ञ में जो आग है वो भगवान की ही जीवा है, वो नहीं जानते हैं. यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु, कृष्ण ही यज्ञ है, यज्ञ पुरुष. आप उसको छोड़, आप उसमें ध्यान देते हुए उनको ध्यान, वो जो साक्षात वहीं पर स्वरूप में है, उनको जब भूख लगा है तो वो सब छोड़ के आप उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि दिस इज जस्ट बाय नो भक्ति. कई हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखते हैं अपना नारद मुनि का, जो वो कॉबलर का. तो उसमें भी भागवत कर रहा है, फिर भी वो पूछता है नारद मुनि को, भाई आप कहाँ जा रहे हो. तो मतलब वैकुंठ जाते हैं. तो फिर आगे रास्ते वो बोलते हैं, ठीक है आप जरा पूछिए हम कब वैकुंठ नाथ के पास आएंगे. बोले हाँ ठीक है पूछता हूँ. फिर वो कॉबलर के पास जाते हैं. कॉबलर भी उनका बहुत सुंदर स्वागत करते हैं. उनका क्या करते हैं, बहुत उनका स्वागत करते हैं. उसके बाद में पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो. तो वैकुंठ. बोले वैकुंठ नाथ, मैं कब भगवान के पास जाऊंगा. तो बोले ठीक है पूछता हूँ. तो दोनों को पूछ लिया. तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण जो था, वो जो भागवत कथा करेगा उसको तो बहुत समय लगेगा, और जो ये कॉबलर है ये तुरंत आएगा. बोले कैसे, ऐसे कैसे, वो तो भागवत में कर रहा है, ये तो मोची का काम कर रहा है. तो बोलते दोनों में अंतर है, जाके पूछ लो. तो जब पूछते हैं तब ब्राह्मण एकदम क्रोधित हो जाते हैं. ब्राह्मण को जब पूछते हैं ब्राह्मण की मैं कब जाऊं, तो बोले बहुत आपको समय लगेगा. तो ऐसे तो फिर नारद मुनि को डांटते हैं, बोलते हैं आप गए नहीं होंगे, यू हैव नॉट गॉन देयर, झूठ बोलते हो, ऐसा कैसे मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को बहुत जन्म लेना पड़ेगा. तो नारद मुनि समझ गए कि ये बाहरी रूप से कर रहा था, ही इज नॉट इन्वॉल्व. तनुमान मनोभीर भवदीय वार्ताम, भगवान की कथा कर रहा है मगर ही इज नॉट ऊपर ही इज नॉट इन्वॉल्व, इज नॉट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है. जैसे एक भक्त को पूछा गया, सर कितने साल से हो आप सीनियर डिवोटी, 20 साल 25 साल 30 साल. यस, आप इतने साल निकाल चुके हो, और व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू बी एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. यानी आप उसमें घुलना चाहिए. खाली अटेंडेंस में इतना साल टाइटल मिल जाएगा आपको, बट द चेंज इन यू हैज टू बी देयर. एंड दैट हम लोग स्वयं, हम लोग अपने आप को देख सकते हैं. हैव यू चेंज्ड और नो. दिस इज सेल्फ एनालिसिस. और ये सेल्फ एनालिसिस ये 2 और लाइन में है. कितना सुंदर बात है. परिपश्यति उदासीनम प्रकृतिम च हतौ जसाम. ये क्या है रियलाइजेशन. परिपश्यति का अर्थ है वन सीज उदासीनम, इनडिफरेंट प्रकृति, मटेरियल एग्जिस्टेंस. प्रभुपाद इसमें ट्रांसलेट क्या करते हैं, दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग. He becomes indifferent. He once sees everything in the right perspective. क्या सुंदर पॉइंट है. He sees everything in the right perspective. And what is that right perspective? सब कुछ वो देखते हैं, पर क्लियर विजन में देखते हैं. क्या देखते हैं. यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च परिपश्यति. That beautiful verse is there in Bhagavad Gita. Yo mam pashyati sarvatra sarvam mahi pashyati. I am able to see everything. That is, the devotee is able to see Krishna in everything, and Krishna is able to see the devotee. How wonderful! Because he is seeing everything. सब कुछ देख रहा है कि कृष्ण का ही हाथ.
जैसे उर्मिला माता जी आई थी दुबई में, तो उन्होंने टॉपिक लिया था मेडिटेट ऑन कृष्णा, आप कैसे देख सकते हो कृष्ण को। तो बहुत सुंदर उदाहरण दे रही थी। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर, रसोहम अप्सु कौन्तेय, भगवान इज द टेस्ट ऑफ वाटर। पानी लेते हैं तो तुरंत हम लोग को ध्यान होगा। बाहर जाते हैं, सूर्य को देखते हैं, तुरंत हम लोग देख सकते हैं वो प्रकाश सारा कुछ भगवान से ही आ रहा है। यक्षुर एष सकिल ग्रहणा, ही इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो जैसे ही हम लोग, और दूसरा भी एक श्लोक है, आयुर्हरति वै पुंसा उद्यान अस्तन चयानसो, तो तुरंत ही श्लोक माध्यम से याद होगा कि हर दिन उद्यान अस्तन हम लोग का जीवन समाप्त हो रहा है। तो भगवान की भक्ति करो इस तरह से। फिर पृथ्वी में से जो सुगंध आता है, उसमें हम लोग भगवान कृष्ण को ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से अन्य कितने और तरीके से we are able to see Krishna, and this is what bhakti does. तो ये realization है, परिपश्यति उदासीनम। क्या हम लोग ये कर रहे हैं? Are we seeing this? Are we seeing Krishna's hand in everything in our lives? जब कोई परिस्थिति आता है तो हम लोग कृष्ण को याद करते हैं कि कृष्ण को भूलते हैं? This is very important point. हम लोग को प्रश्न पूछना चाहिए, Are we able to think of Krishna? Prabhupada said, who is a devotee? One who is attached to Krishna. How he is attached to? In all situations. हर परिस्थिति में, because उसका vision clear है. His vision is very, very clear. He sees everything very clearly from the eyes of bhakti. One is jnana chakshu. One is seeing through the eyes of knowledge. And what knowledge? Is realized knowledge. प्रभुपाद सभी को जब देखते थे तो सबको देखते थे कि सब भगवान के अंश हैं। पंडिता समदर्शन, I used to see that these souls are so much struggling. इस भौतिक जगत में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। I used to see that they are all part and parcel of Krishna. और बेचारा कहाँ इधर इधर भटक रहे हैं। So let me give them Krishna consciousness. This is how Prabhupada used to see. हम लोग कैसे देखते हैं? We see differently. Because हम लोग realized नहीं है. So this is an analysis we should see. हम लोग तो groups बनाते हैं. Groups. We are making groups. कि ये महाराष्ट्रन group, ये केरला group, बिहारी group, amongst devotees also. Among devotees भी group बना रहे हैं. What group we are making? We are making मेरा गुरु भाई। एक बार एक इंट्रोडक्शन कर रहे थे, It's my God brother. तो दूसरे वहां से सवाल आया, वो दूसरे गुरु महाराज के शिष्य थे, तो उन्होंने पूछा, तो मैं कौन हूं फिर सर? आप वो गुरु आप इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं कि मेरे गुरु भाई, तो मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं कौन हूं फिर? तो तुरंत वो पहचान गया, बोलता, सर आप भी मेरे गुरु भाई हो। Yes, we are also good. What is मेरा तेरा, तेरा मेरा? मेरा गुरु भाई, ये आपका गुरु भाई, ये तेरा गुरु भाई। This is in devotees we are doing this. We are making groups. Basis what? Basis what? Bodily connection. गुरु के साथ कनेक्टेड तो है भैया, मगर वो गुरु महाराज दादाजी कौन है? श्रील प्रभुपाद. Srila Prabhupada is the grandfather of all of us. So we are all God brothers. तो ये बोलना मेरा गुरु भाई तेरा गुरु भाई, not correct. We are all Guru brothers, all God brothers. मेरा गुरु भाई है तो मैं उसका लेक्चर सुनूंगा, कोई दूसरा गुरु भाई है तो मैं उसका लेक्चर नहीं सुनूंगा. Analyze yourself. Are you doing this? Yes, I am doing it. So how much have you grown in Krishna consciousness? कहाँ कितना कृष्ण कॉन्शियस में ग्रो हुआ है सर? जो मेरा गुरु महाराज है तो फर्स्ट लाइन में मैं खड़ा रहूंगा, गुरु महाराज मेरे को देखेंगे, मैं फर्स्ट सर्विस करूंगा, गुरु महाराज मुझे देखेंगे, प्रसन्न होंगे, अरे मेरा डिसाइपल इज सो वंडरफुल, मैंने इतने भक्तों को बनाया, देखो मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, सो मेनी डिवोटीज आई मेड, अमेजिंग आई एम. अमेजिंग इज नॉट कृष्णा, आई एम अमेजिंग. ऐसा वी आर थिंकिंग. सो इज दिस परिपश्यति उदासीनम? नो, वी आर नॉट सीइंग वेरी क्लियरली सर. वी आर सीइंग because of our ahankar.
So this we have to be very, very careful. हम लोग कर रहे हैं ये सब काम. But if you see a pure devotee, a paramhamsa, he's able to see everyone equally. And he's kind, compassionate, karuna sindhu to everybody. And this is really bhakti taste. अगर ये भाव होगा, तो you will enjoy association of devotees. You will enjoy to be with them. वो groups नहीं बनाओगे, तो be careful there. This is a very important point. Paripashyati. One can see things very clearly. Krishna is there. हम लोग deities को देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? Wood, marble, statue, deity. We see that way. But how does a pure devotee see? Pure devotee sees Sakshat Brajendra Nandan. He is seeing Krishna himself. This is a high exalted position. So similarly, we should see all this. This is very important. हम लोग का खुद का भी अनुभव देखिए. जब वो नरसिंह मूवी आया है, so nice. Urmila Mataji is also saying, I wanted to see वराहदेव. कैसा वराहदेव आते हैं, और वराहदेव कैसे फिर भूमि माता को कैसे ढूंढते हैं. हाँ, सूंघते हैं, बिकॉज ही स्मेलिंग. सूंघने के बाद में मालूम पड़ा कि वहां पर है, तो गए और उसको फोड़ के फिर बाद में उनको भूमि देव के लगा, वो उनको लेके आए. तो शी वाज सेइंग, आई लाइक दैट सीन सो मच. तो हर भक्तों का अलग अलग सीन. व्हाई? बिकॉज ही इज सीइंग इट फ्रॉम द आईज ऑफ भक्ति. अभी महाभारत का सीरियल जो 90s में चला, तभी हम लोग भक्ति के बारे में हम लोग को नहीं मालूम कुछ था. बट नाउ व्हेन वी सी, हाउ डू वी सी? वी सी सो डिफरेंटली. कृष्ण सो काइंड. कृष्ण कितना, देखो कितना चतुर है. वी सी दैट वे हाउ कृष्ण इज सो हैप्पी. He is doing things, so nicely, because we see from the eyes of bhakti. So we can see that this process is working, and this is the real science of Krishna consciousness. इसलिए प्रभुपाद जी बोलते, this is the science of Krishna consciousness. और लास्ट का जो लाइन है, प्रकृतिम चाहतो जसाम, the influence of material nature through the three modes, जो कई श्लोकों के पहले आप लोग ने सुना होगा. कपिल देव मुनि is talking about how we are influenced by the three modes of nature, that because we are conditioned, we want to enjoy. ये तीन गुण हम लोग के ऊपर प्रहार कैसे करता है? क्योंकि हम लोग का एक ही fill in the blank में एक ही एक पॉइंट है, because we want to enjoy. हम लोग को भोगी बनना है, इसलिए ये तीन गुण फिर बाद में प्रयास करते हैं. बट वैसे ही एंजॉयमेंट को अगर हम लोग कृष्ण के प्रति करें, in Chaitanya Charitamrita wrote that beautiful sloka. I forget that we have to use our senses. Preeti. आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा. Yes. बोलिए सर. आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा. तारे भले काम. कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम. Krishna Indri, if you're trying to please Krishna, then that is prem naam. So this is real prem. So these three gunas will not affect you. Because तीन गुना effect हो रहा है means I'm trying to please myself. मेरे से बहुत मेरे को प्रेम है. ये तीन गुणों जो create something in this material world, then we fall prey to it. Indriya Vishay, that is called Indriya, sense object. इंद्रिय विषय के साथ हम लोग बहुत आ सकते हैं. बट व्हाट डज अ डिवोटी डू? अपने ही इंद्रिय से वही इंद्रिय विषय को कृष्ण की सेवा में उत्पन्न कर उसको युक्त करते हैं. युक्तेन, देन इट बिकम्स परफेक्ट. दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. यही हम लोग को प्रयास करना चाहिए. दिस इज व्हाट इज रियल भक्ति. एंड हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि वी कैन सी स्लोली स्टेडीली these three gunas, ये जो तीन गुण हैं, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, ये सब जो है, जो प्रयास हम लोग के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, सत्वगुण का प्रहार इज गुड, वेरी गुड, बिकॉज उसी में होना चाहिए, तभी जाके हम लोग अच्छी भक्ति कर सकते हैं. तो जो नीचे के स्तर के हैं, रजगुण एंड तमगुण, we can see ourselves that this is tamasic life, this is rajasic life. कई बार होता है छुट्टियों के दिन में थोड़ा हम लोग ज्यादा ये सब करते हैं, थोड़ा कभी देखते हैं टीवी, देखते हैं कभी वो स्पोर्ट्स देखते हैं, ये सब दिस इज ऑल रजगुणी, तमगुणी. सो फिर देन वी से, अरे यार व्हाट एम आई डूइंग, नहीं यार आई शुड नॉट. भक्तों के संग करते हैं, जैसे भक्तों के संग करते हैं, अरे वापस एनर्जी आ जाता है. तो दिस इज
We need energy dose every morning. इसलिए Prabhupada, such a nice program, he's given the morning program. Or devotees like Gopi Unhar Prabhu and so many devotees like this, they are प्रयास कर रहे हैं सबको जोड़ने के लिए. Don't be separatist. हम लोग separatist को गाली देते हैं. You know who we are talking of. सेपरेट बनाना चाहते हैं स्टेट को. अरे स्टेट छोड़ो, हम लोग अपने आप को सेपरेट बनाना चाहते हैं कृष्ण से. वी आर ट्राइंग टू बी सेपरेटिस्ट. डोंट बी सेपरेटिस्ट. भक्त से मैं सुना मर्जिस्ट, बी मर्जिस्ट. मर्जिस्ट मीन्स टू मर्ज विद युक्तेना, मर्ज विद कृष्णा. मर्ज विद कृष्णा का अर्थ ये नहीं है कि वो जो मायावादी लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान से फिर लीन होके हम लोग अपने आप अस्तित्व को खो देते हैं. वी लूज आवर इंडिविजुअलिटी. नॉट दैट, बट टू मर्ज, व्हिच मीन्स टू मर्ज विद द पर्पस ऑफ कृष्णा. व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ऑफ कृष्णा इज टू ब्रिंग बैक everyone back home, back to Godhead. What is the devotee's purpose? Myself and others also go back home, back to Godhead. This is the purpose. Bhakti हम लोग करते हैं to try and develop love for Krishna. वो साथ साथ में हम लोग भी चाहते हैं कि और भी जो इस भौतिक जगत में उदास हैं, जो they don't know the right path, उसको सही मार्ग दिखाएं, उनको उठाएं. Become Mahavadanyaya, most munificent. Devotee is most munificent. तो इस प्रकार से, तो ये इसी से I think time is 7:45 close. So with this I will just the last few, in that position of self, by practice of knowledge and renunciation, devotional service, by practice of bhakti, one sees everything in the right place. So we see things very clearly. This is the realization part. He becomes indifferent to material existence. जो भौतिक जगत में जो परिस्थिति हो, स्थाने स्थित श्रुति गताम तनुवान. ये स्थाने स्थित. One is established in whatever position he is, whatever situation he is. He should engage in devotional service. Keep hearing about Krishna. Keep meeting devotees. Keep going to Dham. Keep serving devotees. There is no other better process than just to serve devotees. Prabhupada जी बोलते हैं, just by श्रवण करने के ज्ञाने प्रयासम के तात्पर्य में बोलते हैं कि just by hearing about Krishna, doing nothing else, just hearing about Krishna, one can go back home, back to God. But is that what we want? We want to attain love for Krishna and love for his devotees. We should love devotees. All are my God brothers. Amazing thought process. सब लोग, that should be the thought. We should love everybody. Is it ideal? Yes, it is ideal. Is it possible? It is possible. That is your individual analysis. And that is real Pandita. Individually, you can see everything very clearly. You can love everyone. This is what exactly is needed. He becomes indifferent to material, and the material influence acts less powerfully on him. Why? Because he's taken Krishna's shelter. Mahatmanastu mam partha daivim prakriti mashritaha. He's taken the shelter of the Daivi Prakriti. Such a great soul. So we should take also shelter of Krishna's spiritual energy. Engage in Krishna's service, somehow or the other. And this way, we will enjoy and relish bhakti. Bhakti has to be relished and enjoyed. Hey, it should not be, oh yaar, kya yaar, ye to bahut sardard hai. No way. It's amazing. Hearing of Srimad Bhagavatam, reciting Srimad Bhagavatam, studying Srimad Bhagavatam. I mean, see, all of this is so enjoyable. You just become Rasika devotees. Devotees are Rasika, means there's just so much of nectar just to be in with them, just to associate with them. So with this, मैं समय हो गया है. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंद. Thank you, Brother. Thank you very much for this session. तो मैं एक्चुअली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, यस भैया बता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम.
Thank you for an excellent class. I had two questions, Prabhuji. Yes, YG Raghunath Mataji, yes. So, Prabhuji, one minute, I wrote it down as the class was happening. मुझे एक question, the role of jnana in bhakti. हमें कैसा पता चलेगा कि what we are doing is mental speculation or the result of ahankar, because sometimes ahankar हमें self analysis में पता नहीं चलेगा. It's more like when others point out, we know that, Prabhuji. So इसके लिए वो medicine का example it somehow came to my mind. So if you can share your thoughts on that. So अगर हम डॉक्टर को believe करके we just take the medicine, उसका भी effect is going to be there. Or somebody like me, because I'm diabetic, I do take a lot of medicines. मुझे वो composition पता होना चाहिए to know the side effects before I take that medicine. So that becomes in a way the role of jnana. So practically Jnana is also required to progress in bhakti, but हमें कैसा पता चलेगा, or how do we know, because sometimes I feel self-analysis में वो पता नहीं चलेगा that it is actually going in the path of ahankar or the mental speculation. So that's my first question, Prabhuji. Just a second, I just try to understand your question. Your question is that how by the process of by Gyan, correct? Yes. That one is able to self-realize himself as to whether it is ahankar, the ahankar is coming in between, or can you just in one Yes, line Prabhuji. just put both the questions? Just whether how do we know that knowledge is actually resulting in ahankar or mental speculation, or are we still using that knowledge in the process of bhakti? Firstly, what we are doing is we are following the process through Shravan. So we are listening from whom? From self-realized souls. So self-realized souls is giving knowledge to us. They have experienced. Are you experienced? Yes, we are also experienced. But they are seeing it very differently. We are actually in the field. They are outside the field. That's why when you sit with devotees, many a times they're giving you such super solutions that you start to understand, अरे how you get bewildered, अरे ऐसे कैसे ये बोल रहे हैं. जैसे महाराज लोग गृहस्थ जीवन में बहुत सुंदर तरीके से बात करते हैं कि ये गृहस्थ में जीवन में प्रॉब्लम्स होता है, तो ऐसे नहीं करो, ऐसे करो. पर उनको कोई अनुभव तो है नहीं पारिवारिक जीवन का, बट ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? That is because of the knowledge acquiring from bhakti. So knowledge is important in your question for bhakti, yes, but it is not the only factor, because by bhakti के माध्यम से हम लोग को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है. Because as a spirit soul, we already have the knowledge, but it is covered knowledge. तो जैसे ही भक्ति करते हैं तो it becomes uncovered. तो अहंकार कब आता है? अहंकार जब आता है we are in conditioned life. हम लोग जब भौतिक जीवन है, and वो self analysis हम लोग खुद कर सकते हैं. We can actually see from ourselves whether we are on the spiritual platform or on the material platform. If I don't get what I want in bhakti, like if for instance if I give you a very example about prasadam, दूसरे को 2 गुलाब जामुन दिया, उनको 1 गुलाब जामुन दिया, आप नाराज हो गए. This is on what level? This is on the level of ahankar. Or someone else is praised. You have also done good service, but मेरे को praise नहीं किया, मेरे को thank you नहीं बोला. ऐसे कैसे मेरे को thank you नहीं, उसको thank you बोला, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो मेरे से बाद आया, मैं तो बहुत सालों से भक्ति है. This is again on the material plane. So one can realize immediately that I am on the ahankar platform and I am not progressing in Krishna. Then I have to take the association of devotees. And this is where
these Paramhamsas and Acharyas come because they are not in the field. There's a beautiful example. जैसे हम लोग युद्ध अगर समझो वॉर हो जाता है तो दोनों अगर फील्ड में, दोनों आर्मी अगर फील्ड में है तो नहीं मालूम पड़ता कि सामने कैसे आक्रमण कर रहे हैं, कितने हैं. बट जैसे हम लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर जाएंगे तो मालूम पड़ता है कि कहाँ कहाँ जो हमारे विरोधी जो आर्मी है वो कहाँ कहाँ छुपे हैं. व्हाई? बिकॉज ही इज अलूफ from this field. So this is where we have to take the association. They are able to see things better. We are on the field, तो इसलिए हम लोग को problem होता है. But as soon as we take shelter of devotees, Guru Maharaj, then they are able to give. Just like आपने example दिया, you take medicines from doctor. अब डॉक्टर जो है वो फील्ड में है, आउटसाइड द फील्ड है. वो फील्ड में थे वो जब वो डॉक्टरी कर रहे थे, वो सीख रहे थे. जैसे ही जब सब सीखने के बाद में एक्सपीरियंस अनुभव हुआ, अब जैसे ही कोई आता है तो वो दवाई तुरंत दे देता है, उसको सिम्टम से मालूम पड़ता है. देन ही टेल्स एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड देन वी फॉलो. एंड as soon as we follow, then everything becomes perfect. So that way. So I hope that is okay with your first question. Yes, Prabhuji, thank you very much. The helicopter example and outside the field, kind of has gone in. Thank you very much, Prabhuji. But don't be outside the field of devotees. Outside, spiritual master, and no, absolutely, Prabhuji, because the moment, because sometimes we are confused, is it ahankar? Then, जैसे आपने बताया, immediately approach, the devotees or be with them, then clarity will jayega. At least practically, that is something that's doable. You see, if one is sincere, he will understand immediately it's ahankar. Right. Immediately. You have to be sincere and honesty in devotional life. A devotee is very honest about his position. You have to be honest. तभी जाके वो गुरु भी उसको बराबर से बताएगा. Senior and devotees will guide you very well. You are not honest, you say everything is going on well, then how is it possible? That's why mentors and mentees are important. Anyway, yeah. What's your next question? Prabhuji, it's regarding the bodily concept. जैसे आपने बताया, even among devotees, what's happening is you tend to, gravitate based on bodily conception. But आपने कहा, we look at, Prabhupada as the main this thing, and we all come under him, or Krishna, Mamai Vamsho Jiva Loke. So we are all amsha of, Krishna, minute particle. But in reality, what happens is, what about, we tend to gravitate towards like-minded devotees. So, usme we try to, kind of, so for example, even lectures, if you're listening, YouTube lectures, we gravitate towards, a particular speaker because, we are able to connect, to what he's saying. Correct. Uska relation to bodily concept, what would you say, Prabhuji? Because wahan bhi we are making a distinction. Right? So, yeah. You shouldn't, when you're hearing the lecture, you should hear, because, and many people have got skills where you like the presentation of that devotee. There's nothing wrong in that. He has a good way of presenting. So you like to listen to his lectures and continue listening to it. But that doesn't mean that you demean somebody else. Right. Yes. For instance, if someone is saying, मैं तो उसका lecture सुनता हूँ. अरे नहीं उसका नहीं सुनो, आप ये सुनो, ये बहुत अच्छा है. No, don't do that. That is coming because of your ahankar. Because you are seeing this in a bodily conception. And that other person, who this person is liking, you're saying don't listen to him. So this is on the platform of bodily conception where you're seeing it. But when you say, Are, yes, why not you listen? What point did you hear from him? Can you also share me some point? So the point should be that you're hearing Krishna Katha. Right. And yes, in some sections it is very important that one doesn't transgress into other Babas and sadhus who are giving lectures. There are so many in YouTube, if you see nowadays. So many katakhars are there. So one must be very careful that who he is listening to. Prabhupada used to say this very clearly. That if you're listening from somebody who is not a devotee, then you will not grow in Krishna's service. But like the example of the milk touch with the serpent. The serpent touches the milk becomes poisonous. So one has to be careful not to transgress from the body of ISKCON. Get into ISKCON and listen from any devotee.
But if he has a very nice skill and you are very attached to his skill of speaking, yes, why not? Listen to. That is, of course, not on the bodily platform. That is on the platform that you like the way he's presenting Krishna. Krishna is so dynamic. Krishna is not stagnant. Similarly, devotees have got various skills of presenting Krishna. So you like this, so you should accept it like so. So you should, it is not on the bodily platform because you are listening about Krishna. But as soon as you start thinking, yes, that this person is from my state, this person is from South India, this person is the thing, I should better hear from him, or this person is my god brother, then I should hear from. This becomes a bodily concept. This we should avoid. I hope that answers your second part. Yes, Prabhuji, thank you very much. Again, stop, don't do the comparison bit. Whatever you like about the speaker, just focus on that. Thank you very much. Just focus on that point and grow in Krishna service. And if someone is asking, what do you listen from, who do you listen from, then guide the person, so and so person. But don't force the person. That becomes very much on the bodily concept. Because what you like is not necessary that they will like. Thank you. Hare Thank Krishna. you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? सुजाता हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका क्लास बहुत अच्छा था, नेक्टरियन क्लास, और आज का मेन टॉपिक था डिवोटी के बारे में। तो अभी जब भी आप बोल रहे थे तभी पूरा महाअवतार नरसिंहा मूवी पूरा मैं व्यू कर रहा था, मीन्स लाइक सोच रहा था महाअवतार नरसिंहा। जब भी प्रहलाद महाराज हर एक ट्री में देखते थे उनको भगवान दिखते हैं हर एक ट्री में। Yes, beautiful. एंड देन भगवान भी लास्ट में जब भी इनकारनेट होते हैं तभी बोलते हैं कि आप मेरे लिए बहुत प्रिय हो, लक्ष्मी से भी ज्यादा। तो आई मीन How amazing, right? कितना ये devotee can enjoy this movie because he sees it with devotion. But आप बताओ। और एक मिनट प्रभु जी। और सेकंड थिंग, कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वो भी बोल रहे थे कि डिवोटी का चर्चा चल रहा था कि वो बोले थे कि भगवान शिव जी इज मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा एंड कृष्णा मेडिटेटिंग ऑन शिव जी इज मेडिटेटिंग ऑन हिज डिवोटीज करके वो बोल रहे थे। तो तभी वो लेक्चर में बता रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के लिए इनकारनेट होते हैं, मीन्स लाइक ही टुक एज अ नरसिंह अवतार, बहुत सारे अवतार उन्होंने भगवान भक्तों के लिए लिए। चैतन्य महाप्रभु बन के आए, बट कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के आए एंड ही गेव हरिनाम प्रभु। तो हमें मटेरियल वर्ल्ड से बाहर लेके जाने के लिए, आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम वापस लेके जाने के लिए इनकारनेट सजन हरिनाम प्रभु। तो यही आप मीन्स लाइक भगवान भी अपने भक्तों के लिए कितना मर्सीफुल है। तो ही वांट दैट वी वांट टू गो बैक एट गोलोक धाम। और ये मटेरियल वर्ल्ड से, जैसे अपने ज्ञान और वैराग्य के बारे में बोल रहे थे, तो थ्रू भगवत गीता, थ्रू भागवतम हमें एक जो ग्लासेस है हमें मिलते हैं, आध्यात्मिक ग्लासेस, एंड वो जो ज्ञान चक्षु है वो हमें गुरु से मिलते हैं। एंड देन वी कैन सी दैट ये जगत जो है, हमें आध्यात्मिक जगत हमें जाना है। एंड थ्रू शिला प्रभुपाद, थ्रू आवर गुरु महाराज, थ्रू आवर डिवोटीज हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna. Yes, Krishna's devotee. Krishna is kind. Krishna's devotees are more kind. They go to whatever lengths to try and give Krishna to everyone. Krishna dite paro. Krishna se tomar. Krishna dite paro. Krishna is yours. You can give Krishna to everyone. Yes. Hare Krishna. Yes. Who else is? Anything else? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी Yes, को। Mataji. Hare Krishna. प्रभु जी, अभी जब ये लेक्चर सुनने के बात हो रही थी तो हियरिंग के लिए, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जैसे अब हमें कोई लेक्चर अच्छा लगता है तो और हम सुनते हैं, हमें बहुत वो इंस्पायर करता है, तो हम
अपने किसी नियर एंड डियर वन को भी फॉरवर्ड करते हैं जी, और सो शुड वी डू दिस? एक चीज तो why ये not? Yeah, why not? You should. वो पॉइंट्स अच्छे लगे, you should. But वो चतुराई नहीं होना चाहिए कि you are doing this so that that person will then be inspired by that guru or whatever and then take initiation from that guru. ऐसा नहीं होना चाहिए. As long as the intention pure है कि भाई वो भक्त बने, why not? कितना फॉरवर्ड करना है शेयर करो, नो प्रॉब्लम, शेयर करते रहो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, यहाँ पे तो वो ठीक है, लेकिन फिर होता ये है कि फिर उधर से भी कुछ आता है कि जैसे कि वो फिर शेयरिंग उधर से भी आता है, कोई लेक्चर आता है या कोई भी ऐसा वीडियो या कुछ which is not मतलब in line with the philosophy of अपना जो वैष्णविज्म का, तो वैसा भी आता है. तो अब दो ऑब्लाइज फील करते हैं हम कि क्योंकि फिर अब बहुत अगर नजदीकी है तो वो होता है कि भाई अब तुमने देखा नहीं देखा, तुमने सुना नहीं सुना, तो वो वाला सिचुएशन जो है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि सुनने या नहीं. तो व्हाट आई ट्राई माय बेस्ट इज, अभी तक जो कर रही थी मैं ये कि बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा थोड़ा करके एंड आई गिव द ये कि हाँ मैंने देखा, ये उसमें अच्छा था, ये अच्छा था, लाइक दिस. तो Yes. अभी तक ऐसे काम चल रहा है. बट गुड करते रहो, बट डोंट डिस्टर्ब डिवोटीज का एक गुण है ये कि उन लोग डिस्टर्ब नहीं करते. वैसे ही लोग डिस्टर्ब्ड है, उसको और कितना डिस्टर्ब करना है. सो डोंट डिस्टर्ब देम बट इंस्पायर देम. इसमें बहुत फर्क है. आप उसको प्रोत्साहित करो. सो और खास करके हमारे प्रभुपाद ऑलवेज एंड प्रभुपाद डिसाइपल्स भी यही बोलते हैं कि डोंट गो आउटसाइड ऑफ ISKCON. प्रभुपाद इज गिवन एवरीथिंग. कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है. अभी YouTube में हम लोग देखते हैं बहुत सारे महाराज, सब फेमस महाराज बहुत सारे पॉइंट्स बोलते हैं. यस, ओके, इफ समवन फॉरवर्ड्स तो ठीक है, सुनो. इफ यू लाइक इट, फाइन, कीप इट विथ यू, बट डोंट अननेसेसरली प्रोपगेट. वो करने की जरूरत नहीं. प्रभुपाद इज गिवन अस इनफ. वही प्रभुपाद जी का प्रोपगेट करो. मेरे को कई ऐसे दूसरे महाराज लोग का ये सब आता रहता है, तो आई जस्ट हियर इट एंड आई कीप इट विथ माई सेल्फ. कोई जरूरत नहीं है फॉरवर्ड करने की. क्यों? Why should I propagate? Prabhupada has given enough. क्या कम दिया है प्रभुपाद ने? Prabhupada has given so much. तो प्रभुपाद जी का जो भी है वाणी, जो पॉइंट्स है, give that. क्यों कंफ्यूज करना है दूसरों को? हाँ, बस मेरा यही था कि मैं सुन के बस I just मतलब वहीं पे I just finish it there. हाँ, बस कोई जरूरत नहीं. बिकॉज वैसे ही लोग इतने कंफ्यूज है और कंफ्यूज. और जैसे सनातनीज में होता है ना, सब समा है. एवरीवन इज द सेम. देवी देवताओं भी सेम, कृष्णा भी सेम, एवरीवन सेम. तो सब गुरु भी सब सेम. तो कोई किसी का भी लेक्चर नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है. वी ऑल अंडरस्टैंड बाय प्रभुपाद हाउ क्लियर प्रभुपाद इज. हु इज अ मायावादी, हु इज अ ब्रह्मवादी. वेरी वेरी क्लियर, पूरा एकदम क्लियर करके बताया. तो वी शुड बी केयरफुल. नो नीड टू ऊपर संप्रदाय से कोई अगर बोल रहा है कुछ, हम लोग को कोई टिपी टिकना नहीं देना है उसके बारे में. वी शुड नॉट. बट यस, टू अ क्लोज क्वार्टर्स में घर पे जब इष्ट गोष्ठी होता है, वी कैन टेल इफ समवन इज लिस्निंग. बट ओवरऑल फोरम, जनरल प्रोग्राम में करोगे तो फिर देयर इज सोशल मीडिया इज सो स्ट्रांग, बैकलैश हो जाता है. सो वी शुड बी केयरफुल इन ऑल दिस एंड वी शुड control ourselves there. That's it. Be with Prabhupada. Be with this moment. Thank you. Yes. Thank you, sir. Yeah. Welcome. Hare Krishna. Giving time. तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और आगे वापस नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. हरे कृष्ण प्रभु दत्त प्रणाम. पंचकल्पतरु नाम पावन कृष्ण नमो नमः. Thank you all. Thank you for inviting again. Sorry, थोड़ा लेट हुआ 7-8 मिनट. हरे कृष्ण.